Good morning, children. Today we are going to start chapter 14, that is the world of plants. Plants are living things like us. Each plant has different parts. The part of a plant growing above the soil is known as the shoot system. It includes stem, branch, leaves, flowers and fruits. The part of plant which grows under the soil is called root system. Roots of plants. The part of a plant that grows deep into the soil is called root. In roots are of mainly plants has a main root that grows vertically downwards, fibrous root in the soil. Neem, mango, pea, gram, beans, mustard, etc. have tap roots. In fibrous roots, plants has a number of small, thin, fiber-like roots of similar size which grow sideways in all directions. Fibrous roots appears bushy. Wheat, grass, rice, maize, onion, etc. have fibrous roots. Some fibrous roots are eaten by people during difficult times. For example, onset of drought, famine, etc. These roots are called storage roots. These root vegetables grow even in drought conditions. In difficult times, people dig out the roots from under the dry soil and eat them to survive. Students, as you know that plants are the living things, and the part of plant growing above the soil is known as shoot system, and the part of plant which grows under the soil is called root system. Means there are two systems in plants: root system and shoot system. Roots are of two types: tap roots and fibrous roots. In tap roots, plants has main root that grows vertically downwards in the soil. टैप रूट में प्लांट की एक मेन रूट होती है, मोटी जड़ होती है जो सीधी मिट्टी के अंदर जाती है, और पतली पतली कुछ थ्रेड जैसे उससे निकल के वो भी मिट्टी के अंदर रहती है, लेकिन एक मोटी जड़ जो सीधी मिट्टी के अंदर रहती है उसको टैप रूट कहते हैं. नीम, मैंगो, पी, ग्राम, बीन्स, मस्टर्ड एक्सेट्रा में टैप रूट ही होती है. फाइब्रस रूट, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी पतली फाइबर जैसी रूट्स जो है सिमिलर साइज की साइडवेज से, एक दूसरे के साइडवेज से मिट्टी के अंदर होती हैं, और ये दिखने में कैसी दिखती हैं? झाड़ जैसी दिखती हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. ये बुशी होती है, और व्हीट, ग्रास, राइस, मेज, अनियन, इसमें सब में फाइब्रस रूट होता है. कुछ फाइब्रस रूट लोग डिफ़िकल्ट टाइम पे खाना पसंद करते हैं, जैसे कि ड्रॉट, फेमाइन, जब सूखा पड़ जाता है या फिर जब भूखमरी होती है, उस कंडीशन में इन रूट्स को खाते हैं लोग, इसीलिए इनको स्टोरेज रूट कहा जाता है. ये रूट्स वेजिटेबल कहाँ जब ड्रॉट कंडीशन में खाए जाते हैं. ड्रॉट मीन्स सूखी जगह में, या जब सूखा पड़ता है, जब पानी की कम बरसता है उस टाइम सूखा पड़ता है, और डिफ़िकल्ट टाइम पे लोग इन जड़ों को निकाल के और इनको खाना खाते हैं, जिससे ये अपने आप को सरवाइव कर सके. लोगों को ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना होगा, तो उस कंडीशन पे ये स्टोरेज रूट्स खाई जाती हैं. नाउ फंक्शंस ऑफ रूट्स. The roots of a plant have the following functions. The roots absorb water and mineral salts from the soil, which help in the growth of the plant. Second function, the roots hold the plants firmly over the ground and prevent the plant from being blown down easily by the wind. For example, they prevent the tree from falling down. What are the main two function of root? First function is they absorb the water and mineral salts from the soil, which help in the growth of the plant. Second function, the roots hold the plants firmly over the ground and prevent the plant from being blown away easily by the wind. पहला फंक्शन क्या हो गया कि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर से पानी और मिनरल सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती हैं, जो हेल्प करता है
फूड प्लांट की ग्रोथ को और फूड प्रिपरेशन के काम में भी आता है। दूसरा, वो मजबूती के साथ प्लांट को मिट्टी के ऊपर खड़ा करके रखती हैं, जिससे तेज बारिश या तेज हवा चलने पे वो गिरे नहीं, राइट। सम प्लांट्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स। Roots of plants like carrot, radish and sweet potato store food prepared by the plant. These roots become swollen by storing food. Such roots are called storage roots. प्लांट की रूट्स जैसे कि कैरेट, रेडिश और स्वीट पोटैटो, ये अपने आप में फूड को स्टोर करके रखते हैं और ये आपको दिखते हैं, सूजे फूले हुए दिखाई देते हैं। देखा होगा आपने कैरेट, रेडिश एंड स्वीट पोटैटो, ये फूले मतलब मोटे मोटे दिखते हैं और ऐसे रूट्स को स्टोरेज रूट्स कहा जाता है। रूट्स डू नॉट ऑलवेज ग्रो अंडर द सॉइल। हैव यू एवर सीन द रूट्स ऑफ द banyan tree? Roots of banyan tree arise from the branches and grow downwards into the soil. हमेशा रूट्स जो है वो मिट्टी के अंदर नहीं होती, कई बार रेयर कंडीशन में आपने देखा होगा banyan tree में रूट्स हमेशा मिट्टी के अंदर होती हैं, मिट्टी के बाहर होती हैं और ये सपोर्ट करती हैं, क्योंकि banyan ट्री बहुत बड़ा ट्री होता है तो ये रूट्स उसको एरियल रूट्स कहते हैं इनको, ये उसको पेड़ को सपोर्ट करती हैं, राइट। Have you ever seen a dodder plant? Dodder is a non-green plant. It cannot prepare its own food. It has special kinds of roots that come in contact with the host plant and absorb food from it. कभी आपने डोडर प्लांट देखा है? डोडर प्लांट नॉन ग्रीन प्लांट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए इसकी जो रूट्स होती हैं वो कांटेक्ट में रहती हैं होस्ट प्लांट की। होस्ट प्लांट किसको कहते हैं? जिसके द्वारा इनको फूड मिलता है और उससे इनको खाना मिलता है। स्टेम, द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट सीन अबव द ग्राउंड इन द स्टेम इज द स्टेम। ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, flowers and fruits are seen on the stem. Stems can be hard or soft. Coriander and spinach have soft stems. Mango and banyan tree have hard stems. When the stem becomes woody, it is called trunk. मिट्टी के ऊपर का जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई देता है प्लांट का, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। इस स्टेम से ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट बेयर करते हैं, मतलब उनसे निकलते हैं। स्टेम्स हार्ड या सॉफ्ट दो तरह की होती है। कोरिएंडर एंड स्पिनच हैव सॉफ्ट स्टेम्स। धनिया और पालक की स्टेम आपने देखी होगी, बहुत सॉफ्ट होती है, जिनको हम सब्जी में यूज़ करते हैं। मैंगो एंड बैनियन ट्रीज़ की हार्ड स्टेम्स होती हैं और ये वुडी होती हैं। हार्ड होती हैं इसलिए वुडी हो जाती हैं और इसीलिए इनको ट्रंक कहते हैं। स्टेम्स आर हेल्पफुल टू प्लांट्स। दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। दे सपोर्ट द लीव्स एंड फ्लावर्स। दे मूव वाटर फ्रॉम द प्लांट्स रूट टू इट्स लीव्स एंड फ्लावर्स। They move food from in the leaves to all parts of the plants, and some plants use their stem for storage. Desert cacti store water in their stems. प्लांट्स के लिए स्टेम बहुत हेल्पफुल होती हैं और ये फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है, दे सपोर्ट लीव्स एंड फ्लावर्स। लीव्स और फ्लावर्स को स्टेम सपोर्ट करती हैं। मीन्स अगर स्टेम नहीं होंगी तो लीव्स और फ्लावर निकलेंगे किस में, राइट। सेकेंड, ये पानी को जड़ों से लेके लीव्स तक और फ्लावर्स तक पहुंचाती हैं। लीव्स तक पहुंचाने का रीज़न ये होता है कि लीव्स इज़ द किचन ऑफ प्लांट, और वहाँ पर जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके लिए वो पानी की ज़रूरत होती है जो स्टेम वहाँ तक पहुँचाती है। फिर जब फूड प्रिपेयर हो जाता है तो फिर लीव से ऑल प्लांट के और भी पार्ट्स में पहुंचाने का काम स्टेम करती हैं। कुछ प्लांट्स अपने स्टेम का यूज़ करती हैं फूड स्टोर के लिए,
डेजर्ट में आपने देखा होगा कैक्टस प्लांट में जो पार्ट दिखता है वो क्या होता है, स्टेम होता है, राइट।